بھی یہ گواہی دیتے ہیں اور ہم مسیح کی قدرت کو اپنی زندگیوں کے اندر بہتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے اور کہ مسیح واقعہ ہی جی اٹھا ہے اور آج بھی ہمارے درمیان رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! مسیح جی اٹھا ہے، آمین۔ مسیح جی اٹھا ہے۔ آپ کے ہر طرح کے سٹریس، ہر طرح کے ڈپریشن، ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کے دکھ، ہر طرح کے روگ ختم ہو جائیں گے کیونکہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ! ہم زندگی میں رہتے ہوئے بعض اوقات بہت ساری مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم بہت سٹریس میں سے گزرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس زندہ امید یہ ہے کہ یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور وہ ہماری امید ہے اور وہ ہمارے جلال کی امید ہے اور وہ ہماری ہر طرح کی اس حالت کو جو کمی کی طرف جا رہی ہے، ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، اس حالت کو وہ بدل کر زندگی اور سرفرازی کی طرف لے کر آنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! آپ کا یسوع زندہ ہے، آپ کا یسوع زندہ ہے۔ آئیے ایک دوسرے سے کہیں یسوع زندہ ہے، یسوع زندہ ہے، یسوع زندہ ہے۔ یسوع آپ کے حالات بدل دے گا، یسوع آپ کی زندگی بدل دے گا، یسوع آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ہر طرح کے دکھ چلے جائیں گے، بیماریاں چلے جائیں گی، سٹریس چلے جائیں گے، دشمن کے حملے ختم ہو جائیں گے کیونکہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہمارے اندر وہ زندگی ہے جو زندگی جی اٹھی ہے، جی اٹھے مسیح کی زندگی ہم آن کرتے ہیں، اس زندگی کے ہم گواہ ہیں اور ہم اپنے اندر یہ زندگی رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور ہمیں وہ ایسی زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رومیو 8:11 میں لکھا ہے کہ جس روح نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہی روح آپ کے اندر ہے اور وہ آپ کو موت کی حالت میں نہیں رہنے دے گا۔ آپ موت کی حالت میں نہیں رہیں گے۔ آپ کے پاس زندگی کا پیغام ہے، آپ کے پاس ابدی زندگی کا پیغام ہے۔ ابدی زندگی آپ کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ حالات پر غور نہ کیجئے۔ آج کل بہت دنیا کا ماحول بہت سٹریس چل رہا ہے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، ایران نے اسرائیل پر کر دیا اور ہم اس وقت تک تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑے ہیں، لیکن ہمارے پاس زندہ امید ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اس نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے وہ مر بھی جائے تو کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! آئیے دنیا کی طرف سے اپنی نگاہیں ہٹائیں اور مسیح پر اپنی نگاہیں لگائیں جو پترس کو پانی پر چلنے کی قوت بخشتا ہے۔ جب ہماری نگاہ کا مرکز مسیح ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے ہم مفاق الفطرت سپر نیچرل زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جب ہماری زندگی کا فوکس کون ہو جاتا ہے؟ مسیح ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ! ہماری زندگی کا فوکس کون ہے؟ دنیا کے حالات ہیں، بلز ہیں، فیسز ہیں، مہنگائی ہے یا یسوع مسیح ہے؟ ہماری زندگی کا فوکس کیا ہے؟ کیا فوکس ہے؟ کس پر فوکس کرتے ہیں؟ کون مرکز ہے ہماری زندگی کا؟ یسوع مسیح۔ سب چیزیں جاتی رہیں گی، ختم ہو جائیں گی، لیکن ایک نام رہے گا،
और वो नाम किसका नाम है? यीशु नाम। आज सुबह जब हमने वर्शिप का आगाज किया तो हमने 72 ज़बूर से वर्शिप का आगाज किया। रहेगा नाम सदा तीकर मसीह दा। जंगो जदल में बहुत से लोग काम आ जाएंगे, मर जाएंगे, बिल्डिंग्स टूट जाएंगी, शायद कोई एटॉमिक वेपन भी चल दे तो खड़े खड़े लोग वहीं पर पिघल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह आपके उन पिघले हुए बदनों को दोबारा से जिंदा करता है। हालेलुया। तो अपनी होप को कभी ना मरने दे, अपनी उम्मीद को कभी खत्म ना होने दे। ये दुनिया आरज़ी है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हमने मसीह के साथ सफर शुरू किया है तो हमारी उम्मीद हमेशा के लिए है और हमारी जिंदगी भी हमेशा के लिए है। हालेलुया। भाई मुंह ने हमें बताया था कि वहाँ जिंदगी कैसी है। उनको खुदा ने एक्सपीरियंस दिया है। खुदा आपको भी बहुत से तजर्बात बख्शता है। हालेलुया। बहुत से तजर्बे खुदा बख्शता है। हम पैगाम की तरफ वापस आते हैं। उन दो लोगों को मसीह बताने लगा अपने बारे में कि कलाम मुकद्दस उसके बारे में क्या कहता है, और लिखा है उसने सारी बातें शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें समझा दी। क्या आज हम शुरू से लेकर आखिर तक समझते हैं? समटाइम हम भी तज़ब्बुब का शिकार हो जाते हैं, मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। ज़हन से चीज़ें जो है वो जब हालात हम पर गलबा पाते हैं तो हमारा फोकस मसीह से हट जाता है। शायद उन दो शागिर्दों का फोकस भी हट रहा था मसीह के कलाम से, मसीह की बातों से, और फिर मसीह ने दोबारा उन्हें याद कराई वो सारी बातें जो उसके हक में कलाम मुकद्दस में मुख्तलिफ अदवार में खुदा ने बयान की थी। और आज कलाम मुकद्दस में से कुछ पेशन गोइयाँ यसाया में से हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। और 7 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, देखो एक कुंवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। इमैनुएल का क्या मतलब है? खुदा हमारे साथ है। अगर आप यसाया चैप्टर 7 को पढ़े तो आखिस बादशाह जंगो जदल में घिरा हुआ, इर्द गिर्द उसके फौजें, वो परेशानी में है, लोग स्ट्रेस में है, लोग परेशानी में है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन खुदा आप उन्हें निशान बख्शता है। यसाया खुदा का पैगाम उस तक पहुंचाता है और कहता, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल होगा। यीशु मसीह जब इस पेशनगोई को अपने उन शागिर्दों के साथ बांटता है, बताता है, उस वक्त तो बहुत स्ट्रेस में है, बहुत मुश्किल में कि वो तो सोच रहे थे मसीह है और बादशाही आ गई और इसकी बादशाही हमेशा के लिए क्या रहेगी? कायम रहेगी। ये क्या हो गया कि 3 दिन पहले उसे सलीब दिया गया और फिर उसे कब्र में उतार दिया गया। वो इन बातों को सोच रहे थे। उनकी सोच ये थी कि अब बादशाही इसराइल को हमेशा के लिए इसराइल में मौजूद रहेगी, क्योंकि मसीह हमारे दरमियान मौजूद है। लेकिन यीशु मसीह ने बार-बार कहा कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह अपने उन शागिर्दों को बताते हैं, मसीह की अपनी पैदाइश के बारे में पेशनगोई के तल्लुक से उन्हें बताते हैं। हालात क्या है? मुश्किल है। इसराइल के इर्द गिर्द क्या है? जंग का माहौल। चाहे असूर ने हमला किया है, उसने दूसरे बादशाहों को भी बगा दिया है,
कि वो इसराइल पर क्या करे, उसके साथ मिलकर कब्जा कर ले, हमला कर दे, उनको खत्म कर दे। लेकिन याद रखिए मसीह जिंदा है और वो अपने लोगों को छुड़ाता है, कलाम करता है, बचाता है। आज भी जब आप मुश्किल का शिकार होते हैं, खुदा आपके साथ बोलता और कलाम करता और आपको उम्मीद बख्शता है। यहाँ पर इस कलाम में यशायाह आखिस बादशाह को उम्मीद बख्शता है कि उसका नाम क्या रखेंगे, इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। वो कह रहा है डर मत, खुदा हमारे साथ है। पैगाम क्या उसको दे रहा है, डर मत, हरासा ना हो, खौफ ना खा, खुदा छुड़ाने की कुदरत रखता है। खुदा जब हमारे साथ है तो वो हमें हर तरह के दुश्मन से छुड़ाएगा, हर तरह के दुश्मन से हमें क्या बख्शेगा, रहाई देगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारे सामने ठहर सकता है। हालेलुया। खुदा को साथ रखिए, खुदा को साथ रखिए, खुदा के साथ रखिए। खुदा को अपनी जिंदगी में मौका दीजिए कि वो आपकी जिंदगी में काम कर सके। फिर इसके बाद यशायाह 53 बाब के बारे में बात होती है और यशायाह 53 बहुत डिटेल लिखा गया है मसीह के बारे में और स्पेशली मसीह की मौत के बारे में, उसके दुखों के बारे में, उसकी सलीबी मौत के बारे में, वो क्यों कुर्बान होगा, किस लिए उसकी जान जो है वो गुजरानी जाएगी, इसके बारे में यशायाह 53 में हम पढ़ते हैं। यशायाह 53 बहुत ही मशहूर, और पीछे जब हम गुड फ्राइडे की इबादत को देख रहे थे तो इसमें से बहुत से हवाले लोगों ने अपने पैगामात में, बहुत से हवाले जो हैं इसमें से शेयर किए। और अगर आप इसमें से कुछ पढ़ सकें तो उसकी 4 और 5 आयत मैं पढ़ना चाहता हूं। पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ूंगा, 4 और 5 आयत कलाम मुकद्दस में से यशायाह 53 बाब में से हम पढ़ेंगे। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, और हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला, और हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा। वो हमारी खताओं के सबब से क्या हुआ, घायल किया गया। जितने जख्म मसीह को लगे, उसकी दाढ़ी को क्या किया गया, नोचा। उसके मुंह को क्या किया गया, थूका। उसके मुंह पर क्या किया गया, थूका गया। अगर आप यशायाह 50 उसकी 6 आयत पढ़ें तो लिखा है, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों के लिए के और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाला की। मैंने अपना मुंह रसवाई और थूक से नहीं छुपाया। अपनी पीठ पीटने वालों के, अपना मुंह नोचने वालों, अपना मुंह तजलील से, थूक से भरा हुआ। लोग उसके मुंह पर क्या करते थे, थूकते, मारते थे। उसकी आंखों पर क्या बांधी गई, पट्टी बांधी गई, और उसको मारते और कहते, नबूवत करके बता के तुझे किसने मारा। और यशायाह ये बयान करता है, ये तजलील उसने हमारे लिए सही। इसकी 4 और 5 आए तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारे गमों को उसने क्या किया, बर्दाश्त किया। पर हमने उसे खुदा का मारा, टूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल
घायल किया गया, जख्मी कर दिया गया, उसके बदन के हर हिस्से को मारा गया। सर पे कांटों का ताज है, मुंह पे थप्पड़ों की बौछार, कमर पर कोड़े मार मार के गोश्त ही उड़ा दिया, और पसली में नेज़ा, हाथों और पांव में कील है। मसीह के बदन का एक भी स्पॉट जो है वो खून से खाली नहीं है, जिस पर खून ना लगा हो। इसीलिए हम कहते हैं यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है, रहाई बख्शता है। मेरे और आपके लिए उसने ये सहा है। याद रखिए, ये मार किसके लिए थी? मेरे लिए। जब अदालत होती, उसने हमारी अदालत सकी है। लिखा है हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, हम सलामत रहे, इसलिए सियासत करके, इल्जाम लगाकर, धोखा देकर वो उसको कुर्बान करने के लिए, वो उसको मौत देने के लिए ले गए। लेकिन वो तो समझ रहे थे इस शख्स को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जो निजाम है उसमें खलल डाल देता है। जब भी आता है रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं, लोग शोर करते हैं, लोग पुकारते हैं, हैकल का निजाम जो है वो खराब हो जाता है। वो फरीसियों को, काहिनों को कोई पूछता नहीं, हर कोई मसीह के पीछे ही चला जाता है। हर रोज का उनका निजाम जो है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, और वो सियासत करके उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपने रास्ते के कांटे को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। लेकिन ये खुदा की मर्जी थी कि उसकी जान जो है वो बतेरों के लिए गुजरानी जाती। हालेलुया। ये किसकी मर्जी थी, ये किसका प्लान था? ये खुदा का प्लान था। मसीह इस प्लान को जानता था, वो समझता था, इसीलिए वो बागे गत्समनी में दुआ करता है और कहता है कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी ही नोस। वो पहले से जानता था कि क्या होने वाला है। उसने पहले से ही एक्सपोज करना शुरू किया, अपने शहीदों को उसने बताना शुरू किया कि मसीह क्या किया जाएगा, गैर लोगों के हवाले किया जाएगा, उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उसने इस बात को अपने शागिर्दों को बताना शुरू किया। वो जानता था, वो इस प्लान से वाकिफ था, उसको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूं। मैं इस दुनिया में तमाम नस्ल इंसानी का इब्जी होने के लिए आया। इब्जी का क्या मतलब है? किसी के लिए पेश कर देना, किसी के लिए किसी को दे देना। तो मसीह तमाम दुनिया के लिए, मेरे और आपके लिए इब्जी बना। वो इस बात को जानता था और यहाँ पर लिखा है हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और हमारी बदकिरदारी के बायस वो कुचला गया। किस लिए कुचला गया मसीह जी? किसकी बदकिरदारी के? किसकी? मेरी बदकिरदारी के बायस मसीह क्या किया गया? उसको मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, रगेदा गया, घायल किया गया, तोड़ा गया। लेकिन याद रखिए, ये सब कुछ उसने किसके लिए सहा है? मेरी। ये बातें यीशु मसीह उनको बताने लगा। किनको बताने लगा? उन दो शागिर्दों को बताने लगा जो शायद ना उम्मीद हो रहे थे। समटाइम हम अपनी लाइफ में किसी भी बात से ना उम्मीद हो जाते हैं, लेकिन याद रखिए मसीह हमारी जिंदा उम्मीद है। उसने हमारे लिए जान दी है, उसने हमारे लिए फिदिया दिया है, वो हमारे लिए कुर्बान हुआ है। उसने मौत को सहा है, उसने दुखों को सहा है, उसने कोड़ों को सहा है, उसने तजलील को सहा है, उसने थप्पड़ों को सहा है, उसने मुक्के खाए हैं, उसने अपने मुंह पर थुकवाया है। कोई हमारे मुंह पर थूके तो हम फौरन से रिएक्ट करते हैं,
ہم فوراً سے کیا کرتے ہیں؟ ریئیکٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں وہ اسے لے گئے اور وہ کیا رہا؟ خاموش رہا. وہ اس کو ایسے لے گئے جیسے بھیڑ کے بال کترنے کے لیے اس کو لے جاتے ہیں, اور وہ کیا رہا؟ خاموش. وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم کیا پائیں؟ اب اس کے مار کھانے سے ہم کیا پائیں؟ اس کے مار کھانے سے ہم کیا پائیں؟ کیا آپ اس کے مار کھانے سے شفا پاتے ہیں؟ آپ اس کے مار کھانے سے شفا پاتے ہیں؟ آپ نے اس کے مار کھانے سے شفا پائی ہے؟ کتنے لوگوں نے اس کے مار کھانے سے شفا پائی ہے؟ وہ مارا گیا تاکہ میں شفا پا جاؤں. وہ مارا گیا تاکہ میں شفا پا جاؤں. وہ مارا گیا تاکہ آپ کے بلڈ پریشر جاتے رہے. وہ مارا گیا تاکہ آپ کا فالج جاتا رہے. وہ مارا گیا تاکہ آپ کی گردوں کی بیماریاں جاتی رہے. وہ مارا گیا آپ کی ذہنی بیماریاں جاتی رہے. وہ مارا گیا آپ کے جوڑوں کی بیماریاں جاتی رہے. وہ مارا گیا آپ کے دل کی بیماریاں جاتی رہے. وہ میرے اور آپ کے لیے مارا گیا ہے. اس نے مار کھائی. اس نے اپنا بدن ہمارے لیے دیا ہے اور اپنا لہو ہمارے لیے بہایا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی کیا پائیں؟ زندگی. یہ مسیح نے کن کے لیے سہا ہے؟ کن کے لیے سہا ہے؟ کن کے لیے سہا ہے؟ بہت تھوڑی سی آواز ہے. کن کے لیے سہا ہے؟ میرے لیے سہا. یاد رکھیے یہ خدا کی محبت ہے. اگر میں اکیلا شخص بھی اس دنیا میں ہوتا اور میں گناہ کی قید میں ہوتا, موت کے بندھن میں بندھا ہوتا, تو خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مجھے رہائی دینے کے لیے آتا. ہاللیلویا. خدا کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مجھے رہائی دینے کے لیے آتا. ہاللیلویا. وہ مجھے کیا دینے کے لیے آتا؟ کیا دینے کے لیے آتا؟ رہائی دینے کے لیے. کیونکہ اس نے خود اپنے لوگوں سے یہ بات کی. املاس جب اس پیغام کو دیکھ رہے تھے, جب انسان گر گیا, اس کو عدم میں سے نکالا گیا, تو خدا نے یہ بات کہی کہ وہ تمہارے لیے نجات کا کیا کرے گا؟ بندوبست کرے گا. اس نے کہا میں تیرے اور عورت کے نسل کے درمیان کیا ڈالوں گا؟ عداوت ڈالوں گا. تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچھ لے گا. اور مسیح نے ابلیس کے سر کو کیا کیا ہے؟ کچھ لیا. اور رومیو کا مصنف کہتا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے, صبر کیجئے, برداشت کیجئے, ہمیشہ مسیح کا انتظار کیجئے, مشکلوں پر دھیان نہ کیجئے. جتنے بھی تیر آپ کے خلاف ہیں, جتنے بھی دشمن آپ کے خلاف ہیں, جتنے بھی ابلیس کی چالیں آپ کے خلاف ہیں, رومیو کا مصنف لکھتا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے وہ جلد تمہارے پاؤں سے ابلیس کو کچلوا دے گا. یقین رکھیے, ایمان رکھیے, خدا کے ساتھ چلیے, خدا کو اپنی زندگی کا چارج دیجئے, خدا کو اپنی زندگی کا کنٹرول دیجئے. وہ فضل عطا کرے گا, وہ قوت بخشے گا, وہ آپ کو روح سے بھرے گا. آپ اس قابل ہوتے جائیں گے کہ آپ ابلیس کو اپنے پاؤں سے کچل دیں, کیونکہ میرے اور آپ کے مسیح نے ایسا کیا ہے. اگر مسیح نے ایسا کیا ہے تو اس کی کلیسیا بھی ایسا کر سکتی ہے. ہاللیلویا. اگر مسیح نے ایسا کیا ہے میں اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو کبھی پریشان نہ ہو, کبھی نا امید نہ ہو, کبھی دنیا کے حالات کو اپنی زندگی پر غلبہ نہ پانے دے. مسیح کا غلبہ اپنی زندگی کے اوپر آنے دے. آپ دیکھیں گے وہ آپ کو چھڑائے گا اور آپ کو رہائی بخشے گا. میں آج آپ کے ساتھ پیغام شیئر کر رہا ہوں. میں ایمانداری سے آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان دنوں میں آپ کے ساتھ پیغام بانٹنے کی حالت میں نہیں ہوں. میں بھی بہت سے سٹریس سے گزر رہا ہوں, لیکن میں یہ جانتا ہوں میرا خدا زندہ ہے, وہ مجھے زور اور مجھے قوت.
बख्शे। मैं उस पर यकीन रखता हूँ, मैं उस पर ईमान रखता हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि वो जल्द इब्लीस को अपने पाँव से, हमारे पाँव से वो कुचलवा देगा, वो फजल देगा, वो कुव्वत बख्शेगा, वो सुर बख्शेगा, क्योंकि जिंदा करने की कुदरत हमारे अंदर काम करती है। जिंदा करने की कुदरत हमारे अंदर रहती है, हमारे अंदर काम करती है। मसीह हमारे अंदर मौजूद है। कभी भी अपनी होप को मरने न दे, कभी भी कभी भी कभी भी अपने आप को कमजोर न समझे, अपने आप को हारा हुआ न समझे, कभी भी अपने आप को हारा हुआ तस्लीम ना करें। आप जीते हुए हैं क्योंकि मसीह हर तरह की जंग जीता है। हालेलुया। आप क्या है? आप क्या है? बोलिएगा। हम क्या है? हम क्या है? जीते हुए। क्यों जीते हुए हैं? क्योंकि यीशु मसीह जीता हुआ है। हालेलुया। क्यों बहने जीते हुए हैं? क्यों 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 हम जीते हुए हैं? क्योंकि यीशु मसीह जीता। बाज़ औक़ात हमारी फैमिली कैसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि हम समझते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। याद रखिए, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। वो आपकी हर एक चीज को नया करेगा। हालेलुया। वो आपकी हर एक चीज को क्या करेगा? नया करेगा। उनकी आंखें खुल गई, उन शागिर्दों की आंखें खुल गई और वो किससे भर गए? कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? और वो खुशी से भर गए और वो जोश से भर गए। जो यरूशलेम से अमोस की राह को जा रहे थे, स्ट्रेस में थे, परेशानी में थे, ना उम्मीदी में थे, वो बातें कर रहे थे और मसीह उनके साथ मौजूद हुआ और मसीह ने कलाम उनके साथ किया और उनको समझाया। और जब उनकी आंखें खुली तो वो जोश और खुशी से भर गए और कहने लगे, जब वो कलाम कर रहा था तो हम खुशी से और जोश से भर रहे थे। जब भी दुख में हो, खुदा को अपनी जिंदगी से बोलने दे, खुदा को अपने साथ कलाम कर रहे थे। उसका कलाम आपको खुशी और जोश से भर देगा। उसका कलाम आपको खुशी और उसका कलाम आपको खुशी और उसका कलाम आपको खुशी और जोश से भर देगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। खुशी और जोश से भरे रहिए, क्योंकि आपका यीशु जिंदा है। आइए अपनी आंखों को